Good morning, everyone. Today we are going to solve Superb English Grammar Chapter 3, and this is for class 6. So let's begin. Alright, so let's read this. Read and understand the given relationships. Tom, Ronnie, and Gina are siblings. Their father's name is Harry Teresa, right? Is their mother. Gina is the eldest and Ronnie is their youngest child. Gary and Shelley are Harry's parents. Fine, so we have to find out the correct answer. Some questions have been asked and we have to answer the questions correctly. So first is Teresa's youngest son's name is Ronnie. So what will we write here? Ronnie. Gary is Ronnie's grandfather. Okay, so I'm just writing G for grand, F for father. Okay, Gina's mother's name. Gina's mother's name is Teresa. Okay, I'm writing over here Teresa. Teresa. Next, Harry is Ronnie's father. Harry is Ronnie's father. So I'm just putting father over here. Okay. Next is Shelley is Teresa's. So Shelley is Teresa's mother-in-law. Okay. So here I am putting mother-in-law. Okay. So now the next question is Tom and Ronnie are Harry's. So they are sons. Okay. So the correct option is they are sons. Teresa's husband name is Harry. Shelley's son's name is Harry. Okay. So yes, countable and uncountable noun. So first of all, we will try to find out what is countable noun. Noun which we can count is countable nouns, and those cannot be count, that is uncountable noun. For example, I have 2 bananas. So bananas, yes, you can count. So this is countable noun. Just look at this example. There is some milk in the pot. Can you count the milk? No. So this is uncountable noun, right? For just look at here, a and a are used only before the singular countable nouns, not uncountable nouns. ठीक है, तो a और an जो होता है जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं के आगे यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये यूज़ नहीं होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द वॉचेज ऑफ दिस ब्रांड आर वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, सो वॉचेज आर काउंटेबल नाउन and the water in this tub is very cold. So water is uncountable noun. So the जो होता है आर्टिकल ए और एन जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन द जो होता है वो अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है. अंडरस्टूड? नाउ countable nouns and uncountable nouns, some words has been given in the chart and we have to find out which is countable and which is uncountable, right? So now we have to find out which we can count, like how many. So these are wall, hotel, team, umbrella, countries, river, class, and brush, brick, and man. These are countable. Now what we have to do, we need to find out uncountable nouns. So let's do it quickly. Uncountable noun जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, using your finger. So the first is grass. Alright, what will we put here? Grass. The first one is grass. Now the second one. Second one is pudding. Okay, so spelling is Pudding. Now the next is, after pudding it's rice, Rice. After rice it is anger, which you cannot count. Okay, so I'm just putting here anger. After anger you can write tea. Okay, so just find out quickly. This is tea. Next, after tea we have tea is courage. Okay, so courage is given here. So courage is uncountable noun, and after courage it's money. Money was given here. Okay, so I'm just circling it, money. And after money this is happiness. Okay, so we have to circle happiness,
and happiness is here after the money, and after happiness we have visitum. So we need to find out where is visitum given. Yeah, I got it. So visitum is here, so you need to write it down in the given space. And the yes, the last is salt. Okay, so salt is given here. Understood? Now let's solve this. Kinds of nouns. So you all know that kinds of nouns: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun. So what is common noun? कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस के लिए होता है, ठीक है, जो सेम क्लास के होते हैं, जैसे कि बॉय, डॉग, होम, ठीक है, पेन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, विलेज, शहर, किसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि अनीता, नागपुर, अमेरिका, इस तरह से, ठीक है. कलेक्टिव नाउन किसी चीज़ का जो कलेक्शन होता है, लाइक आर्मी, फ्लीट, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जो किसी आपकी फीलिंग को, एक्शंस को दर्शाते हैं, आपकी आइडिया को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you can see here honesty, goodness, bravery, kindness, brightness, ठीक है. So these are abstract nouns. So what we have to do this in the third exercise, read the story and write the missing common nouns against. ठीक है, तो हमें पहले स्टोरी को पढ़ना है, उसके बाद हमें बताना है कि क्या मिस है. Once there were three. So आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे आपको boys दिख रहे हैं. So just write down boys in the given place. ठीक है. वन बॉय हैड अ ग्रे, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? माउस, MOUSE, माउस, ठीक है. एंड द सेकेंड बॉय हैड अ, यू कैन सी इट्स अ डॉग, सो यू कैन राइट हियर डॉग विद सॉफ्ट ब्राउन फर. द थर्ड वन हैड अ ग्रीन, so you can see here in the picture it's parrot. So these are noun. Okay, so noun are naming words, you know that. Now the next one is draw and color the picture of a pet you have or you would like to have. Read the use of collection in the following examples. ठीक है, so you need to read this. Understood? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, फ्लॉक ऑफ शिप्स होता है. सो यू हैव टू लर्न द पर्टिकुलर थिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिव नाउन्स. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड बैंक. तो आपको बताना है कि यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे. सो दैट इज़ एंड डैश ऑफ सोल्जर्स और कैटरपिलर्स. तो जो इनका कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं आर्मी. So we will put here ARMY in the given space. Okay, now dash of hens. तो क्या हो जाता है? brood होता है. brood I am writing over here also. brood is the collection of hens. Next is caravan. camel का जो एक ग्रुप होता है उसको हम लोग caravans कहते हैं. ठीक है, so I am just circling caravan. It is given here. You need to write caravan here in the given space. Now dash of cards. तो क्या होता है इसका डेक ऑफ कार्ड्स होता है ना. सो दिस इज़ DECK, डेक ऑफ कार्ड्स. नेक्स्ट इज डैश ऑफ गीज. ठीक है, तो गीज का जो एक कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं गैगल. ओके, सो इट्स हियर GAGGLE, गैगल. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट गैगल. अंडरस्टैंड? सो गैगल इज गिवन हियर, यू कैन सर्कल. नेक्स्ट इज डैश ऑफ एयरप्लेन और शिप. उसको हम क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लीट. सो वेयर इज़ द फ्लीट रिटन? यू नीड टू सर्कल एंड यू नीड टू राइट हियर, दिस इज़ फ्लीट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ डैश ऑफ बर्ड्स और शिप्स. उसको हम जो ये शिप्स का कलेक्शन होता है इसको हम फ्लीट कहते हैं. FLEET, फ्लीट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ डैश ऑफ बर्ड्स एंड शिप, दैट इज़ फ्लीट. ओके, और सॉरी, बर्ड्स और शीप का जो कलेक्शन होता है यानी भेड़ों का जो कलेक्शन होता है उसको फ्लॉक कहा जाता है. क्या कहते हैं हम लोग? फ्लॉक कहते हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग FLOCK, फ्लॉक. नेक्स्ट इज डैश ऑफ क्रोज. जो क्रोज का कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं मर्डर. क्या कहते हैं? इट्स मर्डर. ओके, सो यू नीड टू राइट हियर मर्डर इन द गिवन स्पेस. MURDER, मर्डर. नेक्स्ट इज डैश ऑफ लायन और पिकॉक्स. तो इसके कलेक्शन को हम प्राइड कहते हैं. PRIDE. ओके, सो PRIDE, प्राइड. डैश ऑफ कैटल
डियर, ज़ीब्रा, इसको हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, ठीक है, इनके कलेक्शन को हम हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी हो जाता है, GALAXY, गैलेक्सी। नेक्स्ट इज डैश ऑफ जिराफ्स, इसको हम लोग कहते हैं टावर, TOWER, इट इज़ ऑलरेडी गिवन हियर, यू कैन सर्कल। नेक्स्ट पपीज़, इसके कलेक्शन को हम लिटर कहते हैं, LITTER, लिटर। नेक्स्ट इज डैश ऑफ बनानास, तो इसको हम हर्ड कहते हैं, HERD, हर्ड ऑफ बनानास, ओके। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखिए इस सेंटेंस में कुछ तो गलत दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या गलत है। स्पेशली दिस इज़ रिगार्डिंग कलेक्टिव नाउन्स, तो इसमें जो कलेक्टिव नाउन्स फिल किए गए हैं वो गलत दिए गए हैं और हमको सही कलेक्टिव नाउन्स को फिल करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, द वुमन वॉज कैरिंग ऑन हर हेड अ बंच ऑफ स्टिक्स, तो बंच ऑफ स्टिक्स नहीं होता है, इट्स अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो हम बंच गलत दिया हुआ है, इट्स ऑलरेडी अंडरलाइन, तो बंच की जगह पे हम लिखेंगे बंडल। what do we write here? We will write here bundle, understood? BUNDLE, bundle. Next is a troop of ducats, तो इट्स अ ट्रूप नहीं होता है, ये गैंग होता है, जो डकैट्स का ग्रुप होता है इसको हम गैंग कहते हैं, GANG, ठीक है। सो गैंग ऑफ डकैट्स एंटर द विलेज लेट एट नाइट। इसके बाद है बीवी ऑफ वॉलेंटियर्स नहीं होता, इट्स क्रू, तो क्रू एक ऐसा वर्ड है जो शिप के मेंबर्स को भी कहते हैं। सो क्रू ऑफ वॉलेंटियर्स वॉज प्रेजेंट टू सर्व द हेल्पलेस, राइट। नाउ अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस का जो एक ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं बैंड, BAND, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ ऑफिशियल्स हैज़ बीन इन्वाइटेड टू लंच, तो रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स नहीं होता, उसको कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कैबिनेट, ओके। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर cabinet, it's written here cabinet, all right. Next is it's T. Next is a flock of boats, नहीं, ये flock of boats नहीं होता है। So a group of boats ना, तो यहाँ पे flock यूज़ किया है जो कि birds के लिए यूज़ होता है। तो जो हम boats के लिए एक particular word यूज़ करते हैं that is flotilla. So I'm writing over here FLOTILLA, flotilla. Next a herd of sheep. So sheep का जो एक collection होता है उसको हम herd नहीं कहते हैं बल्कि flock कहते हैं। A flock of sheep is grazing in the field. Next a crowd of worshippers नहीं, crowd नहीं होता बल्कि क्या होता है, इसको हम कहते हैं congregation. So I'm writing here congregation, GATION, okay, GATION, congregation. Now the police were trying to control the crowd, जो गुस्से वाली भीड़ होती है उसको हम लोग mob कहते हैं, crowd नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दे सॉ अ, शीप्स का जो मेंबर होता है, दे सॉ अ डैश ऑफ शिप्स इन द हार्बर, दैट इज़ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। ये फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि शिप्स की बात हो रही है, उसके मेंबर्स की बात नहीं हो रही है। जब उसके मेंबर्स की बात होती तो क्रू का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर हम शिप्स की बात कर रहे हैं तो उनकी जो कलेक्शन है उसको हम लोग फ्लीट कहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक, what we have to do, we have to make abstract nouns from the following words. So जो पे का abstract noun बनेगा वो हो जाएगा पेमेंट, मल्टीप्लाई का जो abstract noun बनेगा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, नो का जो abstract noun बनेगा वो हो जाएगा नॉलेज, स्कार्स का हो जाएगा स्कार्सिटी, आर्ग्यू का हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, परफेक्ट का हो जाएगा परफेक्शन, लॉयल का लॉयलिटी, अपॉइंट का अपॉइंटमेंट, यूनिटी का यूनाइट का यूनिटी एंड लेज़ी का लेजीनेस, ठीक है। सो 2 वर्ड्स आर स्टिल लेफ्ट। डीप का क्या बन जाएगा, आपका जो डीप का बनेगा वो हो जाएगा डेप्थ, इससे जब आप नाउन बनाएंगे तो ये डेप्थ हो जाएगा, DEPTH, डेप्थ। एंड देन आपका जो प्रोवाइड से जब आप नाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोविजन, PROVISION, प्रोविजन बन जाएगा, ओके। नाउ fill in the blanks with abstract noun formed from the given words. तो clean से जो abstract noun बनेगा वो हो जाएगा cleanliness, या ओके।
So let's write the spelling Cleanliness. Cleanliness. Cleanliness is next to godliness. So we will write here Godliness. Godliness. It's a proverb also. Now what is the breadth? Broad है तो breadth है मतलब कि हमें इसकी चौड़ाई जाननी है. BREATH breadth. Next is सो दिस इज़ BREADTH. यहाँ पे D भी हो जाएगा. सो डू द करेक्शन. ठीक है, क्योंकि वो जो ब्रेथ मैंने पहले लिख दिया था उसका मतलब सांस लेना होता है, तो हम यहाँ पे चौड़ाई वाला लिखेंगे. द स्पेलिंग इज़ BREADTH. ओके. डैश इज़ आवर बर्थ राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडम. फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट. ओके. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव क्रिटिसिज्म. सो वी विल राइट हियर क्रिटिसिज्म CRITICISM. Criticism. Negative criticism lowers the self-esteem of a person. He does not believe in what? He does not believe in flattery. 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 Next is it gives me immense pleasure. So what will we write here? We will be writing here pleasure. 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 डैश मस्ट प्रवेल, तो यहाँ पर होना चाहिए जस्ट का जस्टिस बन जाएगा. JUSTICE. जस्टिस मस्ट प्रवेल. नेक्स्ट इज आई विल एक्सेप्ट योर डिसीजन हो जाएगा. DECISION. डिसीजन. नेक्स्ट इज डैश इज सिल्वर एंड डैश इज गोल्ड, तो यहाँ पे स्पीक से आपका जो हो जाएगा स्पीच बनेगा. नाउन स्पीच इज SPEECH. स्पीच इज सिल्वर एंड यहाँ पे हो जाएगा साइलेंटली नहीं, इट्स साइलेंट का हम क्या बनाएंगे? साइलेंट. साइलेंट इज गोल्ड. स्पीच इज सिल्वर, साइलेंट इज गोल्ड. नाउ प्रिवेंट इज बेटर दैन क्योर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. प्रिवेंशन PREVENTION. प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. नेक्स्ट आपका बन जाएगा प्रॉपर एडुकेट से क्या बनेगा? एडुकेशन. जो नाउन बनेगा वो हो जाएगा एडुकेशन. EDUCATION. प्रॉपर एडुकेशन इज मस्ट फॉर द प्रॉस्पेरिटी. सो यहाँ पर जो बनेगा वो हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी. PROSPERITY. प्रॉस्पेरिटी. नेक्स्ट इज डैश योर ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट से आपको नाउन बनाना है, तो ऑनेस्ट का नाउन जो है वो बन जाएगा ऑनेस्टी. तो योर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी. ठीक है. सो LOYALITY. लॉयल्टी. ठीक है. सॉरी हियर T नॉट हियर. लॉयल्टी. नेक्स्ट नाउन्स एंड नंबर्स. सो आपने ऑलरेडी इसका प्लूरल वगैरह आपको पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डॉल का डॉल्स हो जाता है, सिंपली हम उसमें S ऐड करके करते हैं. सो आपको ये इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि कहाँ पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो जाते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई आउट 7. यहाँ पे फादर इन लॉज कीपिंग नंबर द नाउन इन माइंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है. सो फादर इन लॉज, तो जब इन लॉज को हम प्लूरल बनाते हैं तो इन लॉज में हम S ऐड करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि जो हमारा मेन वर्ड होता है उसमें हम S ऐड करते हैं. तो ये हो जाएगा फादर्स. ऑल द थिंग्स आर करेक्ट, बट हम इसमें फादर्स कर देंगे. ठीक है. बाकी लॉज का S हट जाएगा. दैट्स इट. तो ये करेक्ट हो गया. फादर्स इन लॉ लव देयर. अब यहाँ पे सन का प्लूरल क्या हो जाएगा? सन्स हो जाएगा. Okay, there was not there were. There was heavy traffic on the heavy traffic नहीं होता बल्कि ट्रैफिक होता है. Heavy traffic on the road. Why does not like the poetry? Who does not like the poetry? पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता है बल्कि इट्स अ पोइट्री. पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, लेकिन सीनरी का और पोइट्री का इनका प्लूरल नहीं बनता है. ये वही वर्ड प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों में यूज़ होते हैं, पोइट्री. ठीक है. सो हु डज़ नॉट लाइक द पोइट्री ऑफ कीट्स? फार्मर्स कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो कैटल्स नहीं होगा, कैटल हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ काउज. ठीक है. सो फार्मर्स कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो ऑलरेडी अ ग्रुप है कैटल. ठीक है.
पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे, आर का नहीं. सो पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. माई स्पेक्टेकल्स, तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा क्योंकि जो स्पेक्टेकल्स होते हैं वो एक आँख के नहीं बल्कि दोनों आँख के होते हैं. अब यहाँ पे हो जाएगा स्पेक्टेकल्स आर मिसिंग. द पुलिस गैदर्ड सेवरल इन्फॉर्मेशंस, नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है. तो जैसे हमने देखा कि पोइट्री में पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता है, वैसे इन्फॉर्मेशन का भी नहीं बनता है. ठीक है. वन शुड यूज़ सीज़र. अब सीज़र में 2 पार्ट होते हैं इसलिए सीज़र गलत है, यहाँ पर सीज़र्स हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ जेंडर ऑफ नाउन. ओके. सो इसमें कि आपको पता ही है कि जेंडर ऑफ नाउन में कौन कौन होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. ठीक है. तो आपको बताना है कि माउस कैसा जेंडर होता है. ठीक है. सो माउस इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर, चूहा. ठीक है. डक जो होता है वो फेमिनिन जेंडर होता है. ठीक है. एक सेकेंड. Yes, so the mouse was masculine and duck is feminine gender. Mistress is again feminine gender क्योंकि master का जो opposite बनता है वो mistress बनता है. ठीक है. नेक्स्ट एम्परर का जो बनता है वो एम्प्रेस, उसका opposite हो जाता है. तो एम्परर जो होता है वो मैस्कुलिन होता है. किड जो होते हैं वो कॉमन में आ जाते हैं. इसके बाद प्लेग्राउंड जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है. फाइन. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस इज़ डन. अब इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर. ठीक है. तो आपको ये लर्न करना होगा क्योंकि कुछ में ESS जोड़ के बनाए जाते हैं जैसे कि टाइगर, टाइग्रिस, लेकिन कुछ इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. जैसे बैचलर का मेड या स्पिंस्टर, तो वो टोटली चेंज हो जाता है. ठीक है. सो यू हैव टू गो थ्रू दीज रूल्स of changing feminine into masculine and masculine into feminine. Now the next is match the given masculine genders of the feminine genders. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमको मैच करना है. सो टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा. इट्स गोइंग टू मैच विथ टाइग्रेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज कॉक. कॉक का जो हो जाता है वो हैन होता है. सो लेट मी फाइंड आउट वेयर इज़ हैन गिवन. येस, इट्स हियर. नाउ पिकॉक का जो है वो पी हैन बनेगा. इट्स देयर. गैंडर का जो है वो गूज बनेगा. गूज गिवन हियर. एंड देन स्टैलियन का जो होता है घोड़ा होता है, तो इसका जो होगा वो मेयर बन जाएगा, घोड़ी. ओके. नाउ बक का जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि डो हो जाता है. ठीक है. इट्स हियर डो. बुल का जो है वो काऊ बनेगा. सो आर यू एबल टू फाइंड आउट काऊ? येस. नाउ फॉक्स का विक्सन बन जाता है. विक्सन इज गिवन हियर. नाउ बोर का जो है वो सो बनता है, SOW. सो ऑल डन. नाउ गिव द करॉस्पॉन्डिंग अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. तो आयर का जो है वो आयरिस बनेगा. लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग. दिस इज HEI. ओके. HEIRESS. आयरिस एज सुल्तानाज टू सुल्ताना इज़ टू सुल्तान. ठीक है. सुल्ताना का मतलब फीमेल जो रूलर होती हैं और सुल्तान जो होते हैं वो मेल हो जाते हैं. डैश इज़ टू काउ. अब बुल के लिए जो यूज़ होगा दैट इज़ काउ के लिए काउ का अपोजिट हो जाता है बुल. ठीक है. एज गैंडर टू गूज वी हैव ऑलरेडी रेड वाइल वी वर मैचिंग. नेक्स्ट द डैश इज़ टू डो. तो बक का जो डो जो है इसका जो अपोजिट बन जाएगा वो हो जाएगा बक, BUCK. सो बक इज़ टू डो. क्वीन इज़ टू किंग. तो यहाँ पे क्वीन के लिए हम किंग का यूज़ करेंगे. अंडरस्टूड. नाउ डैश इज़ टू विजार्ड एज ड्यूक इज़ टू. तो जो विजार्ड का बनेगा वो हो जाएगा विच. ठीक है. WITCH. एड ड्यूक का जो बनेगा वो हो जाएगा ड्रेक, DRAKE. सो वन मिस्टेक आई हैव डन हियर. ड्यूक का जो होता है वो डचेस बनता है. डचेस, DUCHESS. ठीक है. ड्रेक जो बनता है वो आपको पता होगा कि अभी हमने जाना कि ड्रेक किसका होता है. ड्रेक जो होता है वो बक का बनता है. ठीक है. तो नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट इज टू लैट. एज होस्टेस का क्या बन जाता है, होस्ट. तो यहाँ पे होस्ट हो जाएगा और यहाँ पे
लैट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज़ अ ब्राइड, तो ब्राइड गर्ल के लिए यूज़ होता है, तो बॉयज़ के लिए क्या यूज़ हो जाता है, ग्रूम। ही इज़ अ ग्रूम, दूल्हा है। हर डॉटर इज़ प्रिंस, प्रिंस यूज फॉर बॉयज, सो वी विल राइट हियर प्रिंसेस, PRINCESS। नेक्स्ट इज द मैन सर्वेंट ब्रॉट हर डिनर, तो यहाँ पर मैन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, वुमन सर्वेंट और मेड, ठीक है। शेफर्ड का क्या हो जाएगा, शेफर्डीज हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ SHPHARDESS, शेफर्डीज। नाउ विडो का जो होगा वो विडोवर हो जाएगा, इसमें ER ऐड हो जाएगा, विडोवर। और जो मेड है वो क्या हो जाएगा, मेड की जगह पर मैन सर्वेंट हो जाएगा, MANSERVANT, ओके, मैन सर्वेंट। नेक्स्ट, द किंग केम विद हर सेक्रेटरी, तो यहाँ पर किंग का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्वीन, ओके। नेक्स्ट, the chapter 4, the chapter 3 is done. Thank you so much for watching.